Good morning students. Today's topic is thick lenses and lenses combinations. So अभी तक हमने जो जाना है वो थिन लेंसेज के बारे में हम जानते हैं. हमने पहले जो 12th क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि थिन लेंसेज क्या होते हैं एंड रे डायग्राम रिगार्डिंग दैम. ओके, और यहाँ पर बीएससी में हमने स्फेरिकल सरफेसेस एंड द रे डायग्राम रिगार्डिंग थिन spherical surfaces ये हमने पढ़ चुका है. ओके, now we are discussing about the thick lenses. So for most practical applications thick lenses are used. So most जो practically जो application में आते हैं वहाँ पर thick lenses का use होता है. And optical instrument like telescopes and photographic objectives require wide aperture. Okay, so that's why due to the requirement of wide aperture in telescopes, photographic objectives and etc. These type of optical instrument we use thick lenses. Okay, now what is the thickness of lens? Separation between the poles of its spherical refracting surfaces. So if this is the thick lens, so these two are the spherical refracting surfaces, and the distance between this and this, these are the poles of spherical refracting surface. This P1, if this is P1 and this is P2, then the distance between the these poles is called the thickness of the this distance, that is this distance is called the thickness of the lens. So whenever the focal length is comparable with thickness, it is called the thick lens. So जब भी focal length जो होगी किसी thick lens में वो comparable होगी thickness के साथ, तो हम कह सकते हैं कि that is the thick lens. यानी कि दोनों के बीच में हम compare कर सकते हैं, हम एक को दूसरे के respect में neglect नहीं कर सकते हैं. So that's why we are saying that is called the thick lens if f is comparable with the thickness. Formula of thin lenses, जितने भी thin lenses के formula हैं, formulas हैं, वो applicable हैं thick lenses के लिए. ओके, बट हमें इस चीज़ के लिए कार्डिनल पॉइंट्स का जो ज्ञात होना जरूरी है. ओके, तो कार्डिनल पॉइंट्स अगर हमें पता है तो हम थिन लेंसेज के फॉर्मूले से भी थिक लेंसेज के फॉर्मूले निकाल सकते हैं. ओके, थिक लेंस can be treated as the combination of thin lenses. So we can say that thick lenses can be treated as the combination of thin lenses. Okay, so this is a thick lens. This, sorry. Okay, and this ray is parallel to the optical axis going through the lens, and after refraction it passes through the second focal point. Similarly, the ray this passing through the first focal point and emerging from the lens get parallel to the optical axis. Okay, so these H1 and H2 are the principal points and N1 and N2 are the nodal points here. Okay, such that H1 and A1, H1 A1 is equal to H2 A2 and H2 B2 B1 sorry, H2 B2 is equal to H1 B1. Okay, now सॉरी, सेकंड पेज जो था वो ये वाला था. ठीक है, तो इसको आप सेकंड पेज मान लेना, ये सेकंड पेज था. सेकंड पेज में पहले मैं ये थर्ड पेज में जो ये डायग्राम है मैं इसको बता रही हूँ आपको, ये वाला डायग्राम. ठीक है,
सो दिस इज ऑल्सो अ थिक लेंस। चलो पहले सेकेंड वाले में ही बता देती हूँ। दिस इज, तो जब हम थिक लेंस के लिए, ये थिक लेंस के लिए हम आगे जो है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। डिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो है हम थिक लेंस के लिए डिराइव करेंगे, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत है, वो है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ सिंगल सरफेस। सो पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सरफेस के लिए जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंगल सरफेस के लिए जो डायग्राम है, रे डायग्राम, ये वही वाला डायग्राम है जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। पैराक्सियल रेज के बारे में जो हमने पढ़ा था, ये वही वाला डायग्राम है। ओके, सो ऑल दीज रेज आर दी पैराक्सियल रेज। सो पैराक्सियल रेज आपको पता है जिनके लिए कि जो एंगल्स होते हैं वो बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। ओके, सो इंसिडेंट रेज जो होती है, जो स्मॉल एंगल बनाती है ऑप्टिकल एक्सिस के साथ, उनको हम पैराक्सियल रेज कहते हैं, ठीक। सो इस डायग्राम में, ये डायग्राम बताने की ज़रूरत नहीं है फिर से, इस डायग्राम में जो है ट्राइंगल OSC में देखिए, अच्छा ये बता देती हूँ कि ये एंगल जो है वो φ1 है, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, क्योंकि इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, और ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से थोड़ा हट करके इस तरीके से क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है ये φ1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज दिस, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बना, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन φ2। सो पहले हम एंगल OSC में देख लेते हैं। OSC, दिस ट्राइंगल, सॉरी, ये जो ट्राइंगल है इसमें हम देख लेते हैं। सो इन ट्राइंगल OSC, α1, ये वाला एंगल, एंगल सम प्रोडक्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या देखेंगे, दिस α1 प्लस दिस एंगल, ये एंगल कितना है बताओ, ये वाला एंगल कौन सा, एंगल OSC। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल φ1 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 180 माइनस φ1, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है, बीटा। तो यहाँ लगा लेते हैं हम α1 प्लस 180 माइनस φ1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया φ1 इज इक्वल टू α1 प्लस बीटा, और बीटा प्लस α1, ठीक है। तो φ1 की वैल्यू आ गई बीटा प्लस α1। फिर दूसरा ट्राइंगल देखते हैं हम CSI, ये वाला, ये ट्राइंगल, ठीक। तो इस ट्राइंगल में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और φ2 प्लस दिस एंगल, अब ये वाला एंगल कितना है, ये बीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 180 माइनस बीटा, ठीक है। तो φ2 प्लस दिस α2 प्लस दिस एंगल इज 180 माइनस बीटा। सो φ2 प्लस α2 प्लस 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू 180। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, सो φ2 की वैल्यू यहाँ से आ गई बीटा माइनस α2, ठीक है। यानी कि हमने दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों की वैल्यूज जो हमने निकाल ली है, ठीक है, इन एंगल्स के टर्म में, α1 बीटा एंड α2 के टर्म में। सो पैराक्सियल अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि तो हमें पता है कि इस एंगल्स जो है वेरी वेरी स्मॉल है, तो हम लिख सकते हैं sin θ1 sin φ1 is nearly equal to tan φ1 is nearly equal to φ1। ओके, तो sin φ1 is, हम लिख सकते हैं sin φ1 is equal to φ1 is equal to बीटा प्लस α1 लिख सकते हैं, बिकॉज φ1 is equal to बीटा प्लस α1। तो हम sin φ1 को φ1 के नियर मान रहे हैं, बिकॉज φ1 इज वेरी वेरी स्मॉल। सो बीटा प्लस α1 इज इक्वल टू बीटा प्लस α1 में अगर हम 10 ले लें तो 10 बीटा प्लस 10 α1। सो 10 बीटा इज व्हाट, 10 बीटा, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाले ट्राइंगल में 10 बीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, h अपॉन आधार जो है वो पूरा ये वाला कौन सा है, CD, आधार इज CD, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर CD इज नियरली इक्वल टू CD जो है
हम लिख सकते हैं सी डी इज़ नियरली इक्वल टू सी पी। ठीक है, तो सी पी जो पूरा वो है हमारा क्या, ये आर। ठीक है, सो 10 बीटा को हम लिख सकते हैं एच अपॉन आर, और 10 अल्फ़ा 1 को लिख सकते हैं हम क्या, एच अपॉन एक्स। ठीक है, सो साइन फाई 1 की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गई। ठीक, इक्वेशन ए। एंड साइन फाई 2 की वैल्यू जो है हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा 2, 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा 2, सो 10 बीटा इज इक्वल टू, वही इस वाले ट्राइंगल से निकाल लिया। अच्छा, और यहाँ पर 10 अल्फ़ा 2 जो है वो कहाँ से निकालेंगे, 10 अल्फ़ा 2 यहीं से, तो यानी कि इसके लिए लंब ये है, और आधार जो है वो कितना है, ये y। यहाँ पर भी हमने क्या अप्रोक्सीमेशन माना कि आई डी इज नियरली इक्वल टू आई पी। ठीक, सो आई डी इज नियरली इक्वल टू आई पी। तो यहाँ हमने मान लिया कि एच अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ पर भी अल्फ़ा 1 वाला 10 अल्फ़ा 1 निकाल रहे थे हम, तो ये वाला था। ठीक है, तो लंब इसमें एच है, और आधार जो है वो कितना होगा इसमें, ये ओ डी इज नियरली इक्वल टू ओ पी। ओ पी हमें पता है, ये माना है एक्स। ठीक, सो ये इक्वेशंस ए बी इक्वेशन, और स्नेल्स लॉ आपको पता है, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएं, इस एस पॉइंट पे। सो सॉरी, इस पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं इस एस पॉइंट पे, ये एस पॉइंट पे, ठीक है, तो एस पॉइंट पे जब हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो साइन फाई 1 अपॉन साइन फाई 2 इज इक्वल टू, जो इस ये मीडियम 1 जो है वो म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, और 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। ओके, सो दिस विल बी साइन फाई 1 इज अपॉन साइन फाई 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक है, सो एच अपॉन, यहाँ से हमने रख दिया साइन फाई 1 अपॉन साइन फाई 2। साइन फाई 1 साइन फाई 2 की वैल्यू ये रख लो इस इक्वेशन ए और बी का यूज़ करके। तो एच अपॉन आर प्लस एच अपॉन एक्स, एच अपॉन आर माइनस एच अपॉन वाई इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ओके, अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू 1 इंटू एच अपॉन आर प्लस एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू एच अपॉन आर माइनस एच अपॉन वाई। तो यहाँ से म्यू 1 और आर वाले जो है एक तरफ सेपरेट करके, वाई एक्स वाले एक तरफ सेपरेट करके हमने ये वैल्यूज निकाल ली है। म्यू 2 अपॉन वाई प्लस म्यू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ओके, सो म्यू 2 जो है वो हमने माना है कि म्यू 2 फॉर सिंगल सरफेस के लिए, अगर हम बोलें एक सिंगल सरफेस के लिए, अगर जो है रे जो है वो एयर से और इस दूसरे सरफेस, यानी कि एक मीडियम से दूसरा मीडियम, यानी कि ये जो मीडियम है यहाँ एयर है, और इसका मीडियम मान लिया हमने ये क्या है, म्यू मीडियम का है। ओके, सो म्यू 1 इज हेयर 1 एंड म्यू 2 इज म्यू। सो देन म्यू 2 अगर म्यू रख दूँ और म्यू 1 की वैल्यू अगर मैं इसमें, ये एक जनरल रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हमें मिल गया सिंगल सरफेस के लिए। ठीक है, तो अगर मैं म्यू 2 की वैल्यू म्यू रख देती हूँ, म्यू 1 की वैल्यू 1 रख देती हूँ, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस होगी पोल से, वो क्या है, v होगी। ओके, और क्योंकि ये रे की डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या लेना, या पोल के जो है राइट हैंड साइड है, इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन, इसकी जो साइन होगी वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस यू लिया है। x क्या है, पोल से जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, दिस पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, और ये हमने यहाँ मानी भी है, x है बट हम इसको u मान लेते हैं, और u जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ u। ठीक, क्योंकि ये इस पोल से जो है लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड वाली जो डिस्टेंसेस होती हैं वो हम हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस यू, और r जो है वो दिस डिस्टेंस p एंड c, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड p, पोल के बीच की डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर r, वो r मान ली है अगर। तो ये सब वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी वैल्यूज़ मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी हैं। तो
तो ये हमें मिलेगा म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। अब ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सिंगल सरफेस। ठीक है, तो इसको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास जो है थिक लेंसेज के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पूछते हैं तो आपको इतना लंबा चौड़ा डिराइव नहीं करना, आपको जस्ट ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसलिए मैंने आपको ये डेरिवेशन बताया है। ठीक, सो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो है वो हमने ये सिंगल सरफेस के लिए ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो इसको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला तो यूज़ करेंगे। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि जो थिक लेंस है वो किस तरीके से दिखेगा। थिक लेंस, इसमें आप देख लीजिए थोड़ा सा तिरछी आ रखी है डायग्राम, लेकिन ये रेज जो है वो तिरछी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आ रखी है जबकि ये एकदम स्ट्रेट होंगी। ठीक, सो दिस, इसकी भी कार्डिनल पॉइंट्स जो हैं वैसे ही होंगे जैसे आपने अभी पीछे थिन लेंसेज में पढ़े थे कार्डिनल पॉइंट्स, उसी तरीके से होंगे ये कार्डिनल पॉइंट्स भी। ओके, तो कार्डिनल पॉइंट्स क्या हो गए, जैसे कि 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, 2 नोडल पॉइंट्स और 2 फोकल पॉइंट्स। ठीक है, तो फोकल पॉइंट्स तो आपको पता ही है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होगा, जिससे कि जो इंसिडेंट रे है वो पासिंग थ्रू दी फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट्स पैरेलल टू दी ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ऑप्टिकल और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है। उसी तरीके से जो पैरेलल रेज होंगी, अगर पैरेलल रेज आ रही हैं यानी कि पैरेलल रेज इंसिडेंट रे हैं, यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल हैं इंसिडेंट रेज, वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, दैट इज, और एक पॉइंट से पास होती हैं, दैट इज कॉल्ड दी सेकेंड फोकल पॉइंट। ओके, फिर आपके आते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स। सो प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या हैं आपके, प्रिंसिपल पॉइंट्स जो हैं वो दो कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते हैं जो कि जिनका कि लीनियर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है वो +1 होता है, लीनियर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, फिर दूसरा आपके आते हैं नोडल पॉइंट्स N1 और N2। तो नोडल पॉइंट्स के लिए जो क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज +1। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है +1। तो ऐसे कॉन्जुगेट पॉइंट्स जिनके लिए कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है +1 होता है, दैट आर कॉल्ड नोडल पॉइंट्स। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल प्लेन, प्राइमरी प्रिंसिपल प्लेन और सेकेंडरी प्रिंसिपल प्लेन, ये वाले जो ये प्लेन, ये सॉरी ये जो प्लेन दिख रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली ये लाइन नहीं है, ये क्या है, ऐसा प्लेन है। अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये ऐसा प्लेन दिखेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप इस पॉइंट से देखेंगे तो ये वाला जो है वो एक ऐसा प्लेन दिखेगा आपको। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, प्रिंसिपल प्लेन। विच प्रिंसिपल प्लेन, प्राइमरी प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, प्राइमरी और फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन और सेकंड प्रिंसिपल प्लेन ये दो हैं। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है जो अगर मैं जो हूँ इस इंसिडेंट रे को, जो कि इंसिडेंट हो रही है ये, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से ये, ठीक है, तो मैं अगर इसको पीछे बढ़ाऊँ यहाँ और ये यहाँ इसको इधर बढ़ाऊँ, तो ये एक यहाँ पर कट करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से होने वाला जो प्लेन है, दैट प्लेन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन। सो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट से निकलने वाली रेज हैं, इसलिए जो ये प्लेन होगा वो होगा प्राइमरी प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, और जो प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं आपको ये एक ही लेंस है, और इसके लिए एक बार मैंने ये वाला फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन दिखा रखा है और एक बार ये वाला सेकंड प्रिंसिपल प्लेन दिखा रखा है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी थिक लेंस के अंदर ही, यानी कि जो प्रिंसिपल पॉइंट्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि थिक लेंस के इनसाइड ही हों। प्रिंसिपल पॉइंट्स जो हैं या प्रिंसिपल प्लेन्स जो हैं वो थिक लेंस के बाहर भी लाई कर सकते हैं। ठीक है, कई टाइप के लेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें कि
प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल पॉइंट्स जो हैं वो बाहर भी लाई कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से एक कोई ये है लेंस है, थिक लेंस है, तो इसके लिए जो प्रिंसिपल प्लेन है वो इस तरीके से, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच ऐसे ही लाई करेंगे, ये इस तरीके से भी लाई कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से भी होते हैं, ठीक। सिमिलरली अगर ये कॉनकेव लेंस है तो उसके लिए भी इस तरीके से ये ऐसे होते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स। सॉरी, ये डायग्राम बहुत ही बेकार बना। सो दीज आर द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ दी थिक लेंसेज। तो थिक लेंसेज के बारे में भी जो आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें कार्डिनल पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो कार्डिनल पॉइंट्स का मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो वैसे ही आप यहाँ थिक लेंसेज में भी बता सकते हो, ठीक है। नाउ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर दी थिक लेंस। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हम इसके लिए निकाल रहे हैं थिक लेंस के लिए। तो इसके लिए हमें रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा किसका, सिंगल सरफेस का, ठीक है। और सिंगल सरफेस का जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो हमने अभी यूज़ किया, अभी हमने प्रूफ किया था, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ओके, सो अब हमने एक ऐसा लेंस ले लिया थिक लेंस जिसकी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और जो रेज हैं वो एयर यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है वहाँ से इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पे, ठीक है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो रेज क्या हो रही है, ये इस तरीके से गई और यहाँ F2 पॉइंट से पास होंगी, ठीक। और इस थिक लेंस की जो मोटाई है यानी कि थिकनेस जो है वो सपोज कितनी है, T, दिस इज द T, ठीक है। यानी कि P1 और P2 की वैल्यू जो है, P1 P2 जो है दैट इज T, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए निकाल लेते हैं रिफ्रैक्शन। फर्स्ट सरफेस कौन सा है थिक लेंस का, ये वाला, ठीक है, ये वाला। सो फर्स्ट सरफेस के लिए हम जब रिफ्रैक्शन निकाल रहे हैं यानी कि हम कह सकते हैं फ्रॉम एयर टू लेंस, रेज आर गोइंग फ्रॉम एयर टू लेंस। सो उसके लिए u की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि आप देख रहे हो कि रेज जो है वो कैसे आ रही है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो किस पे होगी, इनफाइनाइट है, ठीक है। वी वैल्यू यानी कि हम इस फॉर्मूले में हम ये सब कुछ वैल्यू रखनी है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। वी क्या है, पोल से जो इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है। तो इमेज की डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, कहाँ, अगर जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस तरीके से जा रही है, ये, ठीक है, दिस पॉइंट, यहाँ पर जो है इमेज की डिस्टेंस क्या हो गई, P1S, P1S, ठीक है, पोल से, क्योंकि हम फर्स्ट सरफेस के लिए ले रहे हैं इसलिए डिस्टेंस भी यहीं से लेंगे, P1 इंटू एस, P2S नहीं लेंगे, ठीक है। P2S तब लेंगे जब हम दूसरे सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका म्यू अपॉन P1S, यहाँ रख देंगे हम इस वाले फॉर्मूले में, म्यू अपॉन P1S माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, यू की वैल्यू इन्फिनिटी, और म्यू माइनस 1 अपॉन ये आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम फर्स्ट सरफेस के लिए ले रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं आर की वैल्यू कैपिटल R1, ठीक है। तो 1 अपॉन P1S इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया सॉल्व करके, दिस टर्म विल बी 0, सो म्यू 1 अपॉन P1S और ये म्यू नीचे चला गया यहाँ, सो 1 अपॉन P1S म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1, सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड सरफेस के लिए हम क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्शन। सो सेकंड सरफेस के लिए जो u होगा, u जो होगा वो कितना होगा, P2S, ठीक है, P2S। तो अब हमने ये उल्टा कर दो इसको, अगर हम सेकंड के लिए जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है ये हो जाएगा, और फोकल अब रेज जो है वो एक फोकल
पॉइंट से होती भी जाएंगी। जैसे कि आप ये दूसरा वाला ये वाला देख रहे हो, इसके लिए रेज जो है वो पैरेलली क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है और फिर फोकल पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, तो सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला। So U is equal to P2S and V is equal to P2F2. V is equal to P2F2. ठीक, and R is equal to R2 ले लिया हमने। ऑल्सो म्यू जो है वो हमने कर दिया है शिफ्ट म्यू से 1/म्यू, क्योंकि यहाँ पर जो रेज है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, लेंस से एयर की तरफ। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस के लिए हम क्या ले रहे हैं, यानी कि यहाँ जो रेज है वो अब इसको इससे लेंस से कहाँ जा रही है, एयर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये सब पुट कर लेंगे हम, सॉरी ये सब पुट कर लेंगे हम, ये सब वैल्यूज पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो वी विल गेट 1/म्यू अपॉन P2F2 माइनस 1/P2S इज इक्वल टू 1/म्यू माइनस 1/R2। ठीक, ये इक्वेशन जो सबसे लास्ट में 1/म्यू अपॉन P2F2 माइनस 1/P2S इज इक्वल टू 1/म्यू माइनस 1/R2। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेंगे, और तो ये 1/म्यू इधर चले जाएगा, 1/म्यू जो है वो यहाँ चले जाएगा, म्यू 1 माइनस म्यू हो जाएगा। ओके, सो दिस इक्वेशन विल बिकम ये सेकेंड 1/P2F2 is equal to mu upon P2S plus 1 minus mu upon R2. This equation is second equation. अब जो है सिमिलर ट्राइंगल्स देखो, A2F2H2 एंड RF2P2, A2F2H2, ये A2F2H2 कौन सा है, A2F2H2 ये वाला। ठीक है, एंड RP2F2 ये वाले ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये वैल्यूज इन दो ये वाले ट्राइंगल्स हो गए एक तो, और दूसरे ट्राइंगल्स कौन से, दूसरे जो ट्राइंगल्स हैं वो कौन से लड़के, सिमिलर ट्राइंगल्स QSP1 एंड RSP2। QSP1 ये Q है, ये पॉइंट QSP1, दिस ट्राइंगल QSP1, और RSP2 दिस RSP2। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो इन ट्राइंगल्स में हमने क्या लिखा, ये वैल्यूज लिखी। फर्स्ट वाले जो दो ट्राइंगल्स हैं ये वाले, इनसे जो प्रॉपर्टी है वो H2F2 अपॉन P2F2 इज इक्वल टू A2H2 अपॉन RP2, और इनकी वैल्यू है H1 एंड H2। ठीक है, तो H1 अपॉन H2 आ गया। ये कहाँ से आया, H1 जो है वो ये वाली वैल्यू है, H1 वैल्यू जो है वो ये है, ये डिस्टेंस है H1, और H2 वैल्यू जो है, H2 जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है। ठीक है, सो H2F2 अपॉन P2F2 इज इक्वल टू आ गया H1 अपॉन H2। ऐसे P1S अपॉन P2S की वैल्यू निकाल ली हमने, वो भी आ गया H1 अपॉन H2। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज जो है H1 अपॉन H2 है, तो H2 अपॉन P2F2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं मैं H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू P1S अपॉन P2S। ठीक, सो 1 अपॉन P2F2 यहाँ से आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन H2F2 इंटू P1S अपॉन P2S इज इक्वल टू 1 अपॉन F H2F2 की वैल्यू देखो आप रे डायग्राम में, दैट इज F फोकल लेंथ। ठीक है, सो F1 P1S अपॉन P2S, दिस इज इक्वेशन 3। तो सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 जो है वो आपकी है दिस, ये इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर लो 1 अपॉन P2F2 की वैल्यू, ये 1 अपॉन F P1S अपॉन P2S वो यहाँ रख लो लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, म्यू
अपॉन P2S प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2। सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये P2S अपॉन P1S इधर चला गया राइट हैंड साइड में, म्यू अपॉन P2S प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2, म्यू अपॉन P1S प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा P2S अपॉन P1S 1 माइनस म्यू अपॉन R2। ठीक है, ये म्यू अपॉन P1S ऐसे ही रहेगा। फिर P2S को हम लिख सकते हैं P1S माइनस T, P2S को, P2S देखो कहाँ है, दिस P2 दिस P2S। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं P1S में से अगर मैं ये डिस्टेंस हटा दूँ तो क्या मिल जाएगा हमें, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो P2S को हम लिख सकते हैं दिस माइनस दिस, यानी कि P1S माइनस T। तो P1S माइनस T लिख दिया। ठीक है, यहाँ इंटू 1 माइनस म्यू अपॉन R2। सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू अपॉन P1S प्लस 1 माइनस T अपॉन P1S। यहाँ से सॉल्व कर लिया, P1S से P1S कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में जब अलग अलग कर देंगे माइनस T अपॉन P1S इंटू 1 माइनस म्यू अपॉन R2। तो दिस वैल्यू को यानी कि यहाँ से हम 1 अपॉन P1S की वैल्यू हम रख सकते हैं कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है ये म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1। ठीक, तो ये इक्वेशन फर्स्ट से हम 1 अपॉन P1S की वैल्यू रख लेते हैं, ये वैल्यू यहाँ रख लेंगे हम, तो ये आ जाएगा ये म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1 और ये कैंसिल हो गया म्यू से म्यू, 1 माइनस T इंटू अपॉन ये P1S की वैल्यू है म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1 और ये वैसे ही रहेगा 1 माइनस म्यू अपॉन R2। ठीक है, तो म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 माइनस T म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1 इंटू 1 माइनस म्यू R2। ये माइनस जो है हमने यहाँ से कैंसिल कर लिया था। ठीक है, नाउ म्यू माइनस 1, ये म्यू माइनस 1 माइनस, इसको हम अंदर खोल लेते हैं पूरा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो 1 माइनस म्यू, तो यहाँ हम इसको अंदर ले जाएंगे, यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो म्यू माइनस 1 हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 प्लस T इंटू यहाँ म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन म्यू R1 R2। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 1 अपॉन एफ लेफ्ट में चल रहा था, लेफ्ट साइड में 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1 कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन से, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 प्लस T इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1 R2, ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंप्यूटिंग फोकल लेंथ ऑफ अ थिक लेंस। ठीक है, तो थिक लेंस का जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमने कंप्यूट किया, रिफ्रैक्शन रे फॉर्मूला जो है हमने किसका यूज़ किया था, सिंगल स्पेरिकल सरफेस का, और फिर वहाँ से हमने क्या ये थिक लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है उसको कैसे हम कंप्यूट करना है, उसके फॉर्मूले को हमने क्या किया, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो है डिराइव किया। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे।